हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई एम लखनऊ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे सूर्य। तो जानेंगे सबसे पहले इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डीडे के दिन में क्या एक्सपीरियंस था, वो सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य, आप एक बार हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है? आपके पास वर्क एक्स है या फ्रेशर हो आप, गैप ईयर है? So first of all, thanks Shreyans, thanks for having me here. So मेरा profile basically I'm a 698 profile, 69% in my 10th, 94% in my 12th, and 8.4 CGPA in my graduation. I have done my accounting and finance honors from Goenka College, and I'm a fresh. ओके। एंड आई एम लखनऊ में जब आपने अप्लाई किया तो आपने किस किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था? So basically, I applied for the ABM program and the PGP program. इनके इंटरव्यू जब शेड्यूल हुआ तो वो सेम डे में था या अलग अलग था आपके लिए? No, it was combined interview. एक ही इंटरव्यू में पूरा हो गया. ठीक है। एंड आपके इंटरव्यू की डेट क्या थी? It was on the 8th of March 2024 एंड and time मोड? was 12:15. ओके। एंड इट वाज ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड? It was fully offline mode. ओके। तो जब आप वहां पहुंचे तो आपके लिए डी डे के दिन में कितने प्रोसेस थे? So first of all, it was the reporting time was 12:15 and I went there, and first they have the verification process, like verification में आपका 10th 12th graduation, if someone has a caste certificate or reservation, so they are basically checking those things, and आपका कोई marks में कोई गलती है कि नहीं है ये सब देख रहे थे. Then they after 1 hour and 30 minutes they started with the VAT process. क्या टाइमलाइंस थी आपके इस वेट की? Uh, uh, मेरा टाइमलाइन जो था, मतलब आफ्टर 1 hour of verification all that, they told me that please come to the this room, like I have panel number 1, so 10 people called for panel number 1, and we were in the room, and they has given us the topic, like changing landscape in management education is a bane for IIMs. This was the topic. हाँ ठीक है। एंड अंदर टाइम कितना आपको दिया गया था इन सब चीजों के लिए? So 15 minutes was the overall time. In between 15 minutes you have to think and write down the topic. ठीक है। और फिर जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो गया वेट का, इसके बाद नेक्स्ट कितने देर में प्रोसेस स्टार्ट हुआ? My VAT was ended, at around 1 p.m. And my actual interview started, like I was in the eighth position. So मेरा interview start हुआ at 3:45 at around like this. ठीक है। तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? Okay. So both of the panelists are male and both are in their 50s, and both were very chill in nature. And I think one of them was a strategic management professor, and one of them is IT and analytics के professor थे. ठीक है। एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? So first of all, when I entered the room, they started with the very common question that tell me something about yourself, and I gave the prepared answer. And after that, they asked me that you have done your BCom, right, Surya? Then tell me what is the lateral meaning of debit and credit. So I was not aware. I asked that in terms of golden rule or not. They asked me no, in terms of not accounting in accounting way, or based on your accounting knowledge. Just tell me the lateral meaning. Like you have a name of your Surya, it has a lateral meaning. Like what is the lateral meaning of debit and credit? So I was not aware, or I have read earlier, but I forgot that. And I told them that I am not able to recall, sir. Then started that, okay, what are the financial ratios that are used to judge financial position of a company or any investment decisions? So मैंने 3 4 रेशियो के नाम बताए. ठीक है. मैंने पहले 2 3 इजी रेशियो बताए, जो कि अगर मेरे को क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत इजी होगा. ठीक है. तो मैं बोल रहा था, in between when I just mentioned the debt equity ratio was there, they interrupted, and they started grilling on debt equity ratio, how they are leverage and all that, how debt equity ratio are used. ठीक है. क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके. ठीक है. और क्यों डेप्ट, कौन कौन ज्यादा रिस्की होता है, डेप्ट ज्यादा रिस्की होता है और इक्विटी ज्यादा रिस्की होता है, क्यों ज्यादा रिस्की होते हैं. ठीक है. मैंने बोला कि वोलेटिलिटी इक्विटी के ज्यादा होते हैं, क्या होता है. तो बोला कि मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में. ठीक है. तो वो भी मैंने बताया. तब वो लोग ने मेरे को एक सिचुएशन दिया कि अदानीज आर टेकिंग सो मेनी लोन्स, सो मेनी हेफ्टी अमाउंट्स आर देयर, सो डू यू थिंक that it is good for the company? What's your view on that?
तो मैंने वहां पर मैं थोड़ा सोचा कि इसको टेक्निकली ज्यादा जाएंगे तो वो लोग थोड़ा ग्रिल करने का कोशिश करेंगे। तो मैंने ऑप्टिमिस्टिक वे में बोला कि अदानी का विजन क्या होना चाहिए और वो शायद इस वजह से ले रहे हैं। ठीक है। तो वो लोग वहां पर मैं ज्यादा नहीं घुसे। फिर दो चार करंट रेशियो और जो जो रेशियो मैंने बताया था कि स्टॉक टर्नओवर एंड ऑल दैट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर देयर, सो उसके बारे में पूछे। ठीक है। सो आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम। then the panelists asked me that in my tell me something about yourself wala question. I have mentioned that I was a national level sports person and I represented the Bengal team twice. So they asked me that you have represented the Bengal football team. Okay, show me your certificates. तो मैंने सर्टिफिकेट आया। देन मेरे को पूछा कि ओके यू हैव सो मेनी अचीवमेंट्स थ्रू योर स्पोर्ट्स करियर, देन व्हाई यू आर नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस प्रोसेस, व्हाई यू लेफ्ट फुटबॉल। तो मैंने बताया कि आई वाज ऑलवेज इंटेंडेड टू मेक माय करियर इन एजुकेशन एंड दिस इज व्हाई। सो वो लोग देन पूछे कि बट नेशनल लेवल खेलने के बाद कौन छोड़ देता है भाई। तो मैंने बोला कि आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी व्हिच आई नेवर मिस्ड। ठीक है, इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, बट मेरा इंटेंशन वाज ऑलवेज इन एजुकेशन। सो दिस वाज द प्रिपेयर्ड आंसर, बिकॉज मेरे को बहुत सारा इंटरव्यू में ये पूछा था। देन वो लोग मेरे को पूछा कि do you know that you are a Bengali and do you know there is there any Bengali film where your position was goalkeeper in football? Do you know any Bengali film name where the goalkeeper is the hero of the film? ठीक है। तो I was not able to recall any Bengali film. I think there is no such film जहाँ पर मैं गोलकीपर हीरो होता है, क्योंकि भाई जो गोल करता है वही हीरो होता है, गोलकीपर कभी हीरो नहीं होता है, रियल लाइफ में भी नहीं होता। तो मैं बोला कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट आई कैन से वन हिंदी फिल्म जहां पर मैं गोलकीपर हीरो होता है। तो मैंने किसी तरह बोल दिया कि कबीर सिंह में मैंने देखा था कि वो गोलकीपर हीरो होता है। ठीक है, वहां पर मैं वो था। ठीक है, शाहिद कपूर हीरो का एक्टिंग कर रहा था, वो गोलकीपर था। वो लोग हंसे बहुत थोड़ा उसमें। ठीक है, बोला बंगाली फिल्म नहीं याद आ रहा है। मैंने बोला नहीं सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी बंगाली फिल्म। ठीक है, और होगा भी तो बहुत पहले का होगा। इन रिसेंट डेज आई हैव नॉट सीन एनी बंगाली। देन दे अगेन स्टार्टेड लाइक ओके यू आर अ नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नेशनल लेवल में, ये सब थोड़ा बहुत पूछे। देन दे शिफ्टेड टुवर्ड द सेकंड पैनलिस्ट। ओके, so the second panelist started with like okay you have done also बीकॉम, like first में ही ये बोला तो मेरे को लगा कि आप बीकॉम से ही पूछने वाले हैं। ठीक है, and he also started with like okay let us discuss some few terms about बीकॉम and financial management। तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ कि व्हाट इज आईआर, मैंने बोल दिया। ठीक है, देन बोला एनपीवी क्या हो, मैंने वो भी बोला। अब मेरे को पूछा कि आईआरआर और एनपीवी का अगर डिफरेंस बोलना है कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ बिजनेस ऑन अ कंपनी, देन विच वन इज अ बेटर पेरीमीटर टू जज योर फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, तो मैंने बोला कि एनपीवी इज अ बेटर डिसीजन एंड वाई मेरे को पूछा। ठीक है, तो मैंने बोला फ्यू पॉइंटर्स कि वाई एनपीवी इज बेटर। देन ही ऑल्सो एडेड अ फ्यू पॉइंटर्स लाइक सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इसको भी जज कर लेना, इसको भी समझ लेना। ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड नोट, ही वॉज स्माइलिंग एंड ही एडेड अ फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, सो आई ग्रेटेड हिम लाइक ओके थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल इनपुट सर, आई विल डेफिनेटली कीप दिस इन माई माइंड, ऐसे करके बोला। देन अ फ्यू क्रॉस क्वेश्चंस लाइक आईआरआर एनपीवी को लेके कि क्यों आईआरआर को तुम बोल रहे हो कि आईआरआर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो जानता था आईआरआर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने बोला कि नो इन केस ऑफ आईआरआर, आईआरआर रिफर्स टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में इंटरनल चीजें मैटर करते हैं, कुछ एक्सटर्नल चीजें भी होते हैं लाइक इन्फ्लेशन ऑल अदर थिंग्स दैट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टेकिंग द डिसीजन, दिस इज व्हाई आई सेड एनपीवी। ठीक है, सो एनपीवी में कैश इनफ्लो आउटफ्लो में ज्यादा बेहतर समझ में, ये मैंने बोला। सो वो लोग बस वो लोग उसमें घूम रहे थे, घुमा रहे थे मेरे को गोल गोल घुमाते घुमाते। देन ही आस्क्ड मी ओके व्हाट अदर कॉल्स यू हैव। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास में कितना कॉल है। तो बोला इतने कॉल है तुम्हारे पास में, ठीक है कौन सा ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि आई वांट टू ज्वाइन आई एम। ठीक है, तो बोला वाई आई एम लखनऊ, देयर आर सो मेनी अदर कॉल्स, यू हैव ग्रेट कॉल्स। ठीक है, कोई कोड भी तो इतना अच्छा कर रहा है, क्यों नहीं कोई कोड। ठीक है, तो मैंने वहां पर मैं एक प्रिपेयर्ड आंसर बोला कि इन केस ऑफ such questions you need to clarify some specific about the college, like they have a particular mission or vision, creating better leaders or better society, like I am Lucknow के केस में एक होता है कि they have mentioned in their website that they want to create future leaders for the betterment of the nation and society, which is basically mentioned in terms of like suprabande rashtra samriti, and I mentioned that। बोला अदर देन दिस कोई होता है।
तो मैंने बोला कि आई एम लखनऊ में बहुत रिजियरस प्रोसेस होता है, लाइक एकेडमिक के लिए आई एम लखनऊ बहुत जाना जाता है। बोला ये किसने बोला तुमको, ठीक है, ये तो नहीं है, आई एम लखनऊ एकेडमिक्स के लिए नहीं जाना जाता है। ए स्टैंड फॉर एकेडमिक्स, एल डजंट स्टैंड फॉर एकेडमिक्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं सर, एल भी जाने जाते हैं, मैंने बहुत सारे एलुमनाई से सुना है, मेरा बहुत सारे सीनियर्स लोग भी हैं। तो बोला ओके ओके फाइन। तब मेरे को बोला कि डोंट यू हैव एनी अदर इंटरेस्ट, लाइक आई एम कोईकोट का इतना अच्छा मतलब कैंपस है, इतना सब कुछ अच्छा है, आई एम लखनऊ ही क्यों, ठीक है, गर्मी में भी तो बहुत गर्मी होता है यहाँ पर में, ऐसे करके मेरे को बोल रहा था। तो मैंने बोला नहीं सर, आई एम लखनऊ इज वन ऑफ माई बेस्ट कॉल। देन मैंने एक पर्सनली स्टैंड लिया विच वॉज माई प्रिपेयर्ड आंसर, like as I already mentioned that I am a national level sports person. So in case of I am Lucknow, there is a competition, inter IIM competition, which is known as Sangharsh, which is very famous inter IIM competition, and there are only four IIMs, A, B, C, and L. Then बोला okay, you know about Sangharsh also. Tell me what is the meaning of Sangharsh. मैंने बोला कि संघर्ष का मीनिंग होता है क्लैश बिटवीन टीम्स, ठीक है। तो बोला संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं?" तो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया कि देयर आर फोर आईएम्स, so many events are there and all that. तो बोला कि why there are four IIMs only, why not other IIMs? तो मेरे को एग्जैक्ट रीजन पता नहीं था, पर एक ऑब्वियस रीजन यही होना है कि these are the four oldest IIMs, ठीक है। तो मैंने वो बोल दिया कि these are the four oldest IIMs, and when there was a decision to start this competition, there are only four IIMs, ठीक है, इसलिए ये चारों को लेके स्टार्ट किया, ठीक है। तब उन्होंने बोला कि यस, दिस इज द मेन रीजन, एंड अदर देन दैट ऑल्सो देयर आर नाउ 21 आईएम्स। अब अगर एक आईएम होस्ट करेगा ईच ईयर, तो 21 आईएम्स को एक साथ में बुलाना, एक लॉजिस्टिक्स पार्ट होता है, सब कुछ होता है, इतना सारा इवेंट को अरेंज करना, तो 3 महीने तो कॉलेज को ही बंद रखना होगा शायद, ठीक है, हम्म। ये सब इवेंट करवाते करते। पीपल क्लास कैसे करेंगे, वो लोग तो पढ़ने आए हैं ना, खेलने थोड़ी आए हैं, ऐसे करके एक टोन में बोलने का कोशिश किया। देन आई हैव मेंशन दैट क्यों मैं इस कंपटीशन में खेलना चाहता हूँ, मेरे खेलने से कोई इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आई हैव दोज एक्सपीरियंस। तो वो लोग मेरे को वहां पर मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया कि तुम्हारे आने से क्या हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे आने से थोड़ी जीत जाएंगे, तुम तो एक ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, देयर आर सो मेनी अदर स्पोर्ट्स, व्हाट अबाउट दैट। तो वहां पर मैंने स्मार्टली बोल दिया कि एक को तो कोई लीडरशिप निभाना होगा, ठीक है, एंड इफ आई सिलेक्टेड एज द स्पोर्ट्स कमिटी हेड और समथिंग, so I would definitely try to collaborate it between teams and so that we can have a well-rounded performance. This way मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये सबको लेके वो लोग बहुत खुश थे। देन बोला कि डू यू नो इस साल कौन जीतेगा, मैंने बोला कौन सा, तो वो लोग बोला कि आई एम लखनऊ जीतेंगे इस साल। तो मैंने बोला कि क्यों, तो बोला कि इस साल आई एम लखनऊ मतलब कंडक्ट करेगा वो इवेंट, और लखनऊ में बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है, तो वो बाहर के आईएम्स आके ना खेल नहीं पाएंगे इस साल, ठीक है, हम लोग के यहाँ पे ना बहुत ठंडा होता है। तो मैंने बोला सर, पिछले भी तो बहुत बार में ऐसा हुआ कि लखनऊ में हुआ, बट अदर्स आई एम विनिंग दैट कंपटीशन ऑल्सो। तो उन्होंने बोला नहीं, इस बार नहीं होगा, ये बात देख लेना, ठीक है। तो बोला कि अगर तुमको निकालना होगा ना कॉलेज से, तो तुमको 3 स्वेटर्स पहनना होगा, ठीक है, आईएम से, तुम आओगे तो देख पाओगे। ये वाला मेरे को थोड़ा पर्सनल टच लगा कि ये वाला ऐसे पॉइंट कोई बोल रहा है कि तुम अगर आओगे तो तुमको देखना पड़ेगा कि 3 स्वेटर्स के बिना तुम निकल नहीं पाओगे। ये वाला बहुत पर्सनल टच वाला पॉइंट लगा। आई डोंट नो व्हाई दे सेड लाइक in order to explain, or there is any other motto behind that. तो ऐसे करके मेरा खत्म हुआ। देन लास्टली दे सेड ओके सूर्या, ऑल द बेस्ट, ठीक है, वी आर डन विद द प्रोसेस। देन करके बोल के वो जो सेकंड पैनलिस्ट से, ही जस्ट सेड कि ओके सूर्या, ऑल द बेस्ट फॉर योर संघर्ष, ठीक है, संघर्ष कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट, ऐसे करके बोल दिया। तो मैं थोड़ा चौंक गया कि व्हाई दे आर सेइंग लाइक दिस, ठीक है, इसके पीछे मोटो क्या है, शायद पर्सनल टच भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इट वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे, दे आर वेरी पोलाइट, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा वो बात। देन ग्रीटिंग एक्सचेंज हुआ, ऐसे करके मेरा प्रोसेस खत्म हुआ। इट वॉज एट अराउंड 4, my interview went for 17 to 18 minutes, I यानी काफी सारे क्वेश्चंस हो गए आपके 18 मिनट्स के think. अंदर। Yes, yes, they were about to end this process very early. मेरा लास्ट में 7-8 मिनट तो मेरा मतलब ये संघर्ष वाला पॉइंट में ही डिस्कस हो गया, ठीक है, मैंने जो बोल दिया पर्सनल पॉइंट था मेरा, तो 7-8 मिनट इसमें ही डिस्कशन हो गया, ठीक है। एंड ये जब आपका प्रोसेस एंड हुआ, इसके बाद भी कुछ प्रोसेस था या यहीं पर खत्म था? No, 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 there was no other process after this. It just with ended with the interview. ओके। चलिए सूर्य, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये वीडियो लोगों के भी काम आएगी, एंड आल्सो आई होप कि आपका भी जल्दी कन्वर्ट हो जाए, जब रिजल्ट आए तो हम भी अपने थंबनेल पे बैनर आपका लगा पाए कन्वर्टेड।
एंड गाइस, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।